magnification caused by curved surface, and again we are talking about convex surface for that matter, and the magnification is transverse magnification. So this side the refractive index is mu, let's say here it is 1, और चूंकि इस बार हम लोग मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके काम नहीं चलेगा, बिकॉज वी वांट द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंथ perpendicular to principal axis. So let us talk about, let's say, an object like this AB. इस ऑब्जेक्ट के लिए जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी कर्व सरफेस के, वो तो एज इट इज जाएंगी, बिकॉज दे आर नॉर्मल टू द कर्व सरफेस, सो उनके लिए तो कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं. बट जो रेज पोल पर इंसिडेंट होंगी उनके लिए नॉर्मल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, एंड दिस रिफ्रैक्शन will make these rays move like this, and that is how final image is formed. Now here you see the image is formed, let's say A dash B dash. This is P, pole of the refracting surface. Now if you see these two triangles ABC and A dash B dash C, they are similar triangles because these two angles are vertically opposite and these two angles are 90 degree each. So in two triangles, in a set of two triangles, अगर दो एंगल्स बराबर प्रूव होते हैं तो the triangles are similar. And here we are interested in finding out image length, that is A dash B dash, upon object length AB perpendicular to principal axis, that is defined as transverse magnification. So MT, which we want to calculate, is A dash B dash divided by AB. Now in similar triangles, ABC and A dash B dash C, ABC and A dash B dash C, A dash B dash upon AB corresponding sides का ratio constant रहेगा. So A dash B dash upon AB is B dash C upon BC. Now पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये u है, और चूंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है तो u इज नेगेटिव, क्योंकि पोल से नापना शुरू करना है, पोल से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे, इधर चलेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सो इट इज नेगेटिव. और इसी तरीके से पोल से इमेज तक की डिस्टेंस v, दैट इज प्लस v फ्रॉम साइन कन्वेंशन, एंड फॉर द सेम रीजन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस प्लस r. चूंकि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फंडामेंटल ज्योमेट्री, तो फॉर्मूला एस्टैब्लिश करने के लिए विल टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन, विल पुट साइन कन्वेंशन. ना ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज हैं बी डैश सी अपॉन बी सी, आपको सारी डिस्टेंसेस पोल से नापनी होती हैं. तो सबसे पहले लिखे बी डैश सी, दिस डिस्टेंस इज पी बी डैश माइनस पी सी, दैट इज बी डैश पी माइनस सी पी. This distance minus this distance is this, divided by BC. BC is this, so it is BP plus
CP. Now see, this is plus O because it is upward. Upward positive होता है, downward negative होता है. This is minus I. So यहां पर देखिए A dash B dash is minus I and AB is plus O. So this is equal to what? B dash P की वैल्यू डालिए. B dash B is V minus CP is R divided by BP. BP is minus U and then CP. CP is R. So here it is what? Plus R. So finally you are left with इसको इस माइनस साइन को यहां एडजस्ट कर दिए. I upon O which is transverse magnification. इस माइनस साइन को यहां एडजस्ट करेंगे, हो जाएगा R minus V. इनफैक्ट इट वाज V minus R. इस माइनस साइन को ले आइए R minus V और यहां पर अपॉन R minus U. This is transverse magnification. If you want, you can further simplify it using the formula for curved surface. आइए देखें, आपको याद है कर्व्ड सरफेस के लिए हमने जो फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया था, म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू इज म्यू माइनस 1 अपान आर. इट वाज म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू is mu minus 1 upon r. You can do it like this: mu u minus v upon uv is equal to mu minus 1 upon r. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए. This will become mu ur minus vr is equal to mu uv minus uv. Now इसको इधर ले आइए और म्यू यू कॉमन ले लिए, सो इट विल बिकम r माइनस वी. और इसको इधर ले आइए और v कॉमन लिए, दिस विल बिकम r माइनस यू. सो दिस विल बिकम बेसिकली r माइनस वी divided by r minus u. R minus v divided by r minus u is v by mu u. So this quantity जो आपका मैग्निफिकेशन आया था r minus v upon r minus u, you can write it to be v upon mu u. So that is transverse magnification of curved refracting surface, and it is actually r minus v upon r minus u, and you can further simplify it to v upon mu u. और अगर आप 1 और म्यू की बजाय mu1 और mu2 लेते हैं तो it will become v by mu2 upon u by mu1. म्यू की वैल्यू डाल दिए, mu2 by mu1, mu2 by mu1 डालेंगे तो mu1 ऊपर आ जाएगा. So that will become v mu1 upon u mu2 और v by mu2 upon u by mu1. So this was all about refraction on curved surface. Now we'll talk about lenses. What exactly a lens is? A transparent medium bounded by two curved surfaces is called a lens. Out of these two curved surfaces, you can have one surface plane also. A plane surface is a curved surface with radius of curvature infinity. So, on the basis of this, we have two major categories. आप इस तरह से दो कर्व सर्फेसेस ले सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें,
अगर इंटरसेक्टिंग कर्व्ड सर्फेसेस से बने हुए लेंस की बात करेंगे तो दैट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस. सो लेंसेज दो तरह के हैं, बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्ड सर्फेसेस, between two intersecting curved surfaces. This is convex lens, and between two non-intersecting this is concave. And then these two kinds of lenses are further subdivided into three categories. That is, if we talk about convex lens, it is biconvex, plano-convex and concavo-convex. So अगर intersecting curved surfaces की बात करेंगे यानी कि convex lens की बात करेंगे तो convex lens होगा biconvex, दो intersecting curved surfaces. This is a biconvex lens. And then intersecting surfaces, this is plano-convex. And finally concavo-convex. So we have biconvex, plano-convex and concavo-convex lens. इन तीनों में ही they are intersecting surfaces. The surfaces intersect. If you talk about non-intersecting curved surfaces, then it will become a concave lens of the three kinds. Concave में देखिए biconcave means two non-intersecting curved surfaces like this. This is biconcave lens. Similarly, plano-concave lens, non-intersecting curved surfaces, and convexo-concave lens. This is biconcave. This is plano-concave. And this is convexo-concave. Now see, इस तरह के नॉमेनक्लेचर में जब आप कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो बाद वाला वर्ड है वो कॉन्केव है. ऐसे ही जब आपने कॉन्वेक्स लेंस की बात की थी, इट वाज बाई कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्केवो कॉन्वेक्स. तो बाद वाला जो वर्ड है वो तो शो करता है लेंस की नेचर. इस तरह के नॉमेनक्लेचर में बाद वाला वर्ड जो होता है वो लेंस की नेचर शो करता है. और जैसी लेंस की नेचर होती है, लेंस की कम से कम एक सरफेस वैसी होती है. यानी अगर कॉन्केव लेंस है तो कम से कम एक सरफेस लेंस की कॉन्केव जरूर होगी. अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस की एक सरफेस कम से कम कॉन्वेक्स जरूर होगी. सो जो पहला वाला वर्ड है ये वास्तव में शो करता है लेंस की दूसरी बची हुई सरफेस का नेचर. बाई कॉन्वेक्स का मतलब दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्केव का मतलब दोनों सरफेसेस कॉन्केव है. When you write biconcave, it is a concave lens. When you write biconvex, it is a convex lens. Plano-convex, एक सरफेस कॉन्वेक्स है दूसरी प्लेन है. प्लानो-कॉन्केव, एक सरफेस प्लेन है दूसरी कॉन्केव है. सिमिलरली कॉन्वेक्सो-कॉन्केव एंड कॉन्केवो-कॉन्वेक्स. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है. सो व्हेन यू से कॉन्वेक्सो-कॉन्केव, convexo concave means it is a concave lens. One surface has to be concave,
The other is convex, convexo-concave. It is a concave lens with one surface convex. ऐसे ही concavo-convex is a convex lens with one surface concave. Now ये तो हो गया लेंस का nomenclature and broad characterization. इमेज फॉर्मेशन में देखिए, जैसे मिरर्स में 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, लेंसेज में विल टॉक अबाउट ओनली 3 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस देखिए, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. नाउ लेंस का ये सेंटर जो जिस पर लाइट इंसिडेंट होगी दैट इज पोल. वी आर टॉकिंग अबाउट थिन लेंसेज. हमारे सिलेबस में सिर्फ थिन लेंसेज है. नाउ लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर एक्चुअली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं. दोनों तरफ फोकल पॉइंट होता है, एंड देन यहां पर C के बजाय, जैसे मिरर में C होता है, यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 2F. वो भी दोनों तरफ होता है. और अभी हम लोग बाद में एस्टैब्लिश करेंगे, यू विल सी कि लेंस के दोनों तरफ अगर सेम मीडियम है, जैसे दोनों तरफ एयर है या दोनों तरफ वाटर है, अगर लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम है तो चाहे लेंस की सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ अलग अलग हो, तब भी लेंस के दोनों तरफ फोकल लेंथ सेम होती है. विल सी दैट. बट राइट नाउ वी हैव 5 पॉइंट्स, 2F, F, P, F and 2F. And then F you understand, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें आप, तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी दे विल पास थ्रू F आफ्टर रिफ्रैक्शन. इसी तरह से जो रेज F से पास होते हुए आएंगी दे विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन. और जो रेज पोल पर इंसिडेंट होंगी वो चाहे जिस एंगल पर भी इंसिडेंट हो दे विल पास विदाउट डेविएशन. बट यहां शर्त वही है कि लेंस इज थिन एंड दिस एंगल इज स्मॉल. पैरेक्शियल रे सिस्टम, rays are incident on the lens at small angles. Now ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए. सिमिलरली वी टॉक अबाउट कॉन्केव लेंस. रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर concave lens. Again we have 5 points on the principal axis of concave lens. जो रेज फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल चलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ फोकल पॉइंट. इसी तरीके से जो रेज इस फोकल पॉइंट की सीध में जा रही होंगी दे विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन. एंड जो रेज पोल पर इंसिडेंट होंगी दे विल मूव अनडेविएटेड. Therefore, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन सिमिलर हैं, बट यहां कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है. Therefore, the convex lens is also called converging lens. And similarly, concave lens रेज को डाइवर्ज करने की कोशिश करता है, so it is also called diverging lens. So these are 3 rules of image formation. जो रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी दे विल पास थ्रू फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस में. जो रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट कॉन्केव लेंस में. देन जो रेज फोकल पॉइंट से आती हुई इंसिडेंट होगी दे विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन. और जो फोकल पॉइंट की तरफ जाती हुई इंसिडेंट होगी दे विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन.
एंड थर्ड, जो पोल पर इंसिडेंट होंगी दे विल मूव अनडेविएटेड एज इट इज। शर्त ये है कि ये पैरेक्शियल रे सिस्टम है और लेंसेज थिन है। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस and we have 5 important points on it. Like this. Now first of all, suppose object at infinity, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और लाइट रेज सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट सिंस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी all light rays will be self parallel, they will be coming as a parallel beam. Now what will happen, जो रेज पोल पर इंसिडेंट हो रही है वो तो अनडेविएटेड पास होंगी, so all these rays will be focused at a point in the focal plane. This plane passing through focal point perpendicular to principal axis is called focal plane, and all these rays will focus at focal plane and a point image will be formed. So this is first thing. Now second, B, object is still at infinity but the light rays are parallel to principal axis, then what will happen, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं like this, then what will happen, instead of focal plane they will converge at focal point and a point image will be formed like this. So this is simple. When light rays are coming from a source at infinite distance, they converge at a point in the focal plane, and when light rays are parallel to principal axis, they converge at the focal point. But suppose object is at finite distance from the lens, beyond 2f. So third case, object C, object between infinity and 2f. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में है, then what is going to happen? Let us see. हमारा लेंस वही है, ये f, ये 2f, ये f, ये 2f, and object is somewhere here, infinity और 2f के बीच में. Now let us apply rules of image formation. जो रेज पैरेलल इंसिडेंट होंगी दे विल पास थ्रू फोकल पॉइंट, जो रेज पोल पर इंसिडेंट होंगी दे विल मूव अनडेविएटेड एंड इमेज विल बी फॉर्म्ड between f and 2f. So image formed, image is real, inverted, smaller, and it is formed between f and 2f. यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f की तरफ आ रहा है, इमेज जो पहले
F पर फॉर्म हुई थी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम F टू 2F। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा 2F पर तो इमेज भी फॉर्म होगी 2F पर। सो लेट्स सी नेक्स्ट केस। D, object at 2F. When object comes to 2F, in the same situation, the moment object comes to 2F, what happens? The points are same. This is F, this is 2F on this principal axis, same length. Now what will happen? जब ऑब्जेक्ट 2F पर आ जाएगा, अब भी रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन वही है, जो रेज पैरेलल चलेंगी वो फोकल पॉइंट से पास होंगी, जो रेज पोल से पास होंगी they will go undeviated and the image will be formed at 2F itself. So it is somewhat like this. Like this. Now in this situation, when object is at 2F, image is also formed at 2F. Image is of course real, क्योंकि लेंस का ये वाली साइड रियल होती है, ये वर्चुअल होती है फॉर इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट इस साइड में फॉर्म हो रहा है इमेज, तो ये इमेज रियल है, इट इज रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज। सो इमेज इज रियल inverted of same size, also formed at 2F. So when object is at 2F, its image is also formed at 2F. It is of same size, it is real and inverted. Now object further comes closer to the lens, that means object is between 2F and F. When objects, you bring this object further close to the lens, what we expect? Now the image formation is a little different. When object is somewhere here, this is our lens, this is F and this is 2F. Now see, जो रेज पैरेलल चलेंगी they will pass through focal point, और जो रेज पोल से पास होंगी they will pass as it is, and this is the image formation. And here you can see the image is larger than the size of object, formed beyond 2F. So जब ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में आ जाएगा तो इमेज 2F से और बाहर चली जाएगी. So when object between 2F and F, image is real, of course, inverted, larger, formed beyond 2F. ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है. And finally what will happen? When object comes to F, the image will go to infinity. क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज दूर आती जाएगी. जब ऑब्जेक्ट F पर आ जाएगा तो इमेज चली जाएगी इन्फिनिटी को. आइए उसे देखते हैं. सो ऑब्जेक्ट एट F,
Now see, this is pole of the optical instrument, F, 2F, here is the object, this is F, let's say this is 2F. Again rules of image formation, जो rays parallel आएंगी they will pass through focal point, और जो rays pole से pass होंगी they will pass as it is, and they after producing will neither meet this side because they become parallel, in fact neither meet this side. So image is formed at infinity. और आपको पता है कि when image is formed at infinity we don't say it is real or virtual, because if you consider it to be meeting at infinity this side it will become real. If you say that they appear to be meeting this side, it becomes virtual. So when image is formed at infinity we don't say it is real or virtual, and then it is of infinite size, of course. And you also cannot say whether it is erect or inverted. Therefore image is formed at infinity, that is sufficient when the object is placed at focal point of the lens. Then finally, when object comes even closer to the lens, that means object is between F and P. Now object between F and P. When object is between F and P, somewhere here, ध्यान दिए, कॉन्वेक्स लेंस में ये अकेली सिचुएशन होती है जब वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है. जो रेज पैरेलल चलेंगी दे विल पास थ्रू फोकल पॉइंट, और जो रेज पोल से जाएंगी दे गो अनडेविएटेड. एंड इन दिस सिचुएशन अगर इनको पीछे प्रोड्यूस करें आप तो इमेज फॉर्मेशन इस साइड में होगा. So this time image is virtual and erect. So image is virtual, erect, or it is larger. ध्यान दिए, कॉन्वेक्स लेंस की वर्चुअल इमेज लार्जर होती है. यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉन्वेक्स लेंस की वर्चुअल इमेज और कॉन्केव लेंस की वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंशिएट करती है. Virtual image of an object formed by a convex lens is larger than the size of object and it is formed behind object. This is also the same important property. Concave lens की जो virtual image होगी वो object के आगे form होगी. Convex lens की virtual image object के पीछे form होगी. कॉन्वेक्स लेंस की वर्चुअल इमेज लार्जर होगी, कॉन्केव लेंस की भी हम लोग देखेंगे वर्चुअल इमेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी. सो अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे आप, इमेज भी पीछे से आगे को अप्रोच करेगी. अगर ऑब्जेक्ट पी के बहुत पास आ जाएगा तो इमेज भी लेंस के बहुत पास हो जाएगी और दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के हो जाएंगे. सो दैट इज हाउ व्हेन यू मूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एफ, इमेज मूव फ्रॉम एफ टू इन्फिनिटी. You move object from F to P, image turns back to this infinity and comes closer like this. So this is about the nature and position of image formed by a convex lens. It is simple. The convex lens is also called converging lens. Now we'll talk about nature and position of image formed by a concave lens. So now we'll talk about the image formed by a concave lens. Again we have 5 points on it: F, 2F and P.
Now here you see, whatever may be the position of object, whether here, here or here, wherever you draw, the image is always virtual, erect, and then smaller than the size of object, like this. So this is image formed, AB, A dash, B dash. So रियल ऑब्जेक्ट के लिए यानी किसी भी पोजीशन के लिए वर्चुअल इमेज जो है ये एक तो ऑब्जेक्ट के सामने है, दूसरी स्मॉलर है. सो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल erect, स्मॉलर. ये डिफरेंस है इसका फ्रॉम द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस. एंड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, in front of object, always between F and P, always between F and P. So इसमें बहुत सारी पोजीशंस नहीं है ऑब्जेक्ट की. इसमें ऑब्जेक्ट को आप चाहे कहीं भी रखें, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P. इन्फिनिटी पर रखेंगे, सारी रेज इस तरीके से डाइवर्ज करेंगी कि दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम F, देन दैट विल बी अ पॉइंट इमेज. अदरवाइज ऑब्जेक्ट को अगर आप फाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे तो P से चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो उसकी, चाहे 2F से बाहर हो, चाहे 2F और F के बीच में हो, चाहे F और P के बीच में हो, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, smaller than the size of object, and virtual erect. So this is all about the image formation by a concave lens, that is a diverging lens. Now lenses में सबसे important चीज है lens formula. So let us see lens formula. जिस तरीके से मिरर फॉर्मूला कैलकुलेट किया था हमने, 1/f इज 1/v प्लस 1/u. इसी चीज में जब मिरर फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1/f इज 1/v माइनस 1/u. ये डिफरेंस है. दिस माइनस इज फॉर लेंस. यहां पर प्लस होता अगर ये मिरर होता. सो फॉर लेंस फॉर्मूला 1/f इज 1/v माइनस 1/u. Now let us try establishing it. एक बार फिर से we are using fundamental geometry to establish a formula. तो साइन कन्वेंशन के रूल्स हमें पता है. सपोज ये f है, ये f है, दिस इज लेट्स से 2f. ऑब्जेक्ट यहां रखा है, जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगी दे विल पास थ्रू फोकल पॉइंट, और जो रेज पोल से पास होंगी they will go undeviated. So this is object AB and this is image A dash B dash. Now here you see again we have set of similar triangles, two sets of similar triangles. One is ABP and A dash B dash P. This is one set, and the other is, let's say this point is Q, PQF and A dash B dash F. This point is focal point F. So we have two sets of similar triangles. So to establish that formula, लेट्स से अब आपको पता है P से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, दिस इज माइनस यू, वाई माइनस यू. ये रिएक्शन हमारी इंसिडेंट रे की रिएक्शन है. P से नापना शुरू करेंगे, P से ऑब्जेक्ट तक जाएंगे तो इधर चलेंगे,
इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, सो इट इज माइनस। ऐसे इधर ये इमेज डिस्टेंस है, ये प्लस v इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर की भी। नाउ लेट्स सी इन सिमिलर ट्रायंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ABP एंड A', B', यहां पर देखिए AB अपॉन A', B' corresponding sides का रेशो is BP upon B', this is one thing। एक और चीज, अगर ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जाहिर बात है AB और PQ they will also be equal because then it will form a rectangle, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। So the other important relation is that AB is equal to PQ. So if you talk about things in similar triangles, PQF and A', B', here PQ upon A', B' corresponding sides का ratio PQ upon A', B' is equal to PF upon B', now see, इसको नापने के लिए you write PB' minus PF, because all distances must be measured from principal axis, this is 2, और यहां पर देखिए चूंकि AB PQ के बराबर है तो फाइनली यू कैन राइट PQ that is AB upon A', B' is equal to PF upon B', P minus PF, so this is our second relation। now दो रिलेशन है हमारे पास, एक है AB upon A', B' is BP upon B', P, दूसरा है AB upon A', B' is PF upon B', P minus PF। अब इसमें वैल्यूज डाल दिए साइन कन्वेंशन के साथ, तो विल गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बराबर करिए, वी कैन राइट इट लाइक दिस फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यहां से AB upon A', B' is BP upon B', और यहां से AB upon A', B' is PF upon B', P minus PF, वैल्यूज डाल दिए। BP is minus U upon B', is plus V, PF फोकल लेंथ है पॉजिटिव होगी, B', is V और PF फोकल लेंथ है अगेन पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, this will become minus UV minus minus plus UF is equal to VF, so write it like this, UV उसको इधर ले आइए is UF, इसको इधर ले आइए माइनस VF, इस पूरे एक्सप्रेशन को UVF से डिवाइड करिए, सो यहां पर UVF से डिवाइड करेंगे बचेगा 1/f, यहाँ UVF से डिवाइड करेंगे बचेगा 1/v, और यहाँ UVF से डिवाइड करेंगे बचेगा 1/u, so 1/f is equal to 1/v minus 1/u, that is length formula। So that is how we reach the relation 1/f is equal to 1/v minus 1/u. It is a very important relation when you talk about lenses, and this formula is equally valid for concave lens,
बस कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस के लिए एफ नेगेटिव। वी और यू के प्रॉपर साइन रखने हैं आपने जब इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करना है। सो दिस इज अबाउट द लेंस फॉर्मूला एंड देन मैग्निफिकेशन। If you talk about magnification in lenses, let us talk about magnification. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सबसे पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। सो एम टी इज आई अपॉन ओ, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो साइन टर्मिनेशन के हिसाब से ये माइनस आई है और ये प्लस ओ है, अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव। सो यहां सिमिलर ट्रायंगल्स में देखिए, इन सिमिलर ट्रायंगल्स A dash B dash P, A dash B dash P and ABP, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो की बात करिए, A dash B dash अपॉन AB, A dash B dash upon AB is B dash P divided by BP. Now values डालिए इसमें, A dash B dash is minus I upon plus O is equal to B dash P, that is V, and upon BP, that is minus U. So transverse magnification, which is I upon O, from here this I upon O minus sign इधर transfer करिए, this minus sign will be cancelled, that is simply V by U. So transverse magnification is actually V by U in lens. So lenses के लिए एक बार फिर से ध्यान से देख लिए, मिरर के लिए जो चीज आपने एस्टैब्लिश की थी, मिरर में आपने लिखा था 1/f is 1/v प्लस 1/u। लेंसेज में है 1/f is 1/v माइनस 1/u। मिरर में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था I/O विच इज माइनस v बाई यू, और लेंसेज में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है बाय डेफिनेशन तो ये I/O ही है, बट नाउ इट इज प्लस v बाई यू। सो मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, यहां लेंस फॉर्मूले में माइनस आ जाता है प्लस की जगह, और मैग्निफिकेशन में यहां माइनस होता है यहां प्लस होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू रिमेंबर। देन जब भी आप इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो यू विल ऑलवेज गो बाय द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। एक चीज और देख लिए, आप लिखते हैं 1/f = 1/v माइनस 1/u फॉर लेंसेज, और m होता है v बाई यू। नाउ यहां से m को आप खाली u के टर्म में या खाली v के टर्म में भी निकाल सकते हैं, v या u को इस फॉर्मूले से रिलेट करके। जैसे मान लीजिए आप u और f में निकालना चाहते हैं, v एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, इस पूरे को पहले v से मल्टीप्लाई कर दिए, दिस विल गिव यू, इफ वी वांट टू एलिमिनेट v, इसको u से मल्टीप्लाई कर दिए, u बाई f इज u बाई v माइनस u बाई u, दिस विल बिकम 1। नाउ u by f is u by v minus 1, so u by f plus 1 is u by v,
u plus f by f is u by v. So v by u will become f upon u plus f. So the same magnification formula can be written in terms of u and f as f upon u plus f. ऐसे ही अगर आप f और v में लिखना चाहें तो यही काम करते हैं, बजाय u से मल्टीप्लाई करने के v से मल्टीप्लाई कर लिए, you will get the other kind of relation. Now लेंसेज में सबसे ज्यादा यूज होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसमें वी टॉक अबाउट relation of focal length of the lens with both the radii of curvature of the surfaces. So उसके लिए अभी सबसे पहले सिंपल केस, suppose both side it is air, the refractive index is 1 and material of the lens refractive index is mu. Suppose इस साइड से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट लाइट जिस सरफेस पर पहली बार पड़ती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सरफेस. सो दिस इज सरफेस 1. उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद इस पर पड़ेगी, सो दिस इज सरफेस 2. ये 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पलटा और आपका कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव हो जाएगा. सो लाइट सबसे पहले इंसिडेंट जिस सरफेस पर हो रही है वो 1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं होगा, लेट्स से C1, और इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया R1. अगर आप बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो ध्यान दिए, पहले रिफ्रैक्शन के लिए ये प्लस R1 हो जाएगा, बिकॉज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप पोल से नापेंगे. ऐसे ही दूसरी सरफेस के लिए ये C2, इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, और ऐसे ही ये हो जाएगा R2, और ये होगा बेसिकली नेगेटिव, क्योंकि अब आप इधर नाप रहे हैं. और अगर आप थिन लेंस की बात करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैटर नहीं करती. यू कैन से दैट बोथ ऑफ दीज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, बट ये वैलिड तभी है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिन लेंसेस. Then watch very carefully the image formation here. What exactly happens is, if suppose here is some object and this is the light ray incident on first surface here. So for this first surface, center of curvature ये है, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाइए. दिस विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑन विच लाइट रेज आर इंसिडेंट. अब लाइट रेयरर मीडियम यानी कि एयर से डेंसर मीडियम यानी कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में एंटर कर रही है. सो लाइट रेज इंस्टेड ऑफ मूविंग दैट वे दे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, दे विल बेंड मे बी लाइक दिस. दिस वाज नॉर्मल. So light rays has got bent towards normal. अगर इनको सेकेंड सरफेस नहीं मिलती इन लाइट रेज को, तो दे वुड हैव फॉर्म फर्स्ट इमेज. अगर सेकेंड सरफेस नहीं मिलती, ये सारा मीडियम म्यू कंटिन्यू रहता, तो ये लाइट रेज यहां बेंड करने के बाद यहां कन्वर्ज करती सपोज. बट बिफोर दे कुड रीच दिस प्लेस, the light ray encounter the second surface जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है. सो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए, this is second normal. now light rays denser मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है, so they will bend away from the normal. ये नॉर्मल है, नॉर्मल से बाहर, so they will bend somewhere here and finally they converge at a place I2. So that is the final image formed. इस प्लेस को थोड़ा और डिटेल में देख लीजिए. सपोज ये है ये लेंस की पोजीशन. पहली सरफेस पर लाइट रे एंटर करती हैं, यहां पर इंसिडेंट होती है इस जगह पर, यहां पर इनको ये नॉर्मल मिलता है. सो लाइट रेज
instead of moving this way, instead of continuing this way, they bend towards normal and they move like this. They would have gone like this. But before they could reach there, they meet here on the second surface. यहाँ पर नॉर्मल ये है, और अब ये लाइट रेज चूंकि डेंसर मीडियम से, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से एयर में आ रही हैं, सो दे मूव अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल, so they move away from the normal and they travel like this. It is like this, this, then this, then this. This is the movement of light rays, and that is how image of object is formed at the place I2. ये तो हो गया रे डायग्राम. नाउ अब आइए अप्लाई करते हैं कुछ सीरियस कैलकुलेशन. Suppose we consider both the surfaces of the lens independently, so we can apply refraction at a curved surface. और फर्स्ट सरफेस पर अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करें तो फर्स्ट सरफेस पर इट इज व्हाट, फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए लेट्स सी, चूंकि हम फंडामेंटल ज्योमेट्री अप्लाई नहीं कर रहे हैं, we are just trying to establish a relation using another already established formula, no use of sign convention. ये माइनस यू है, बट हम ये माइनस साइन नहीं डालने वाले हैं. फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद ये V1 है फर्स्ट इमेज, बट ये प्लस भी हम यूज नहीं करने वाले हैं. और फाइनली लेंस को पार करने के बाद यहां पर इमेज बनने वाली है, ये V है, this is also plus, but we are not going to use these signs. So refraction formula लगाइए कर्व सरफेस पर. आपको याद है म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू इज म्यू माइनस 1 अपान आर. बिना किसी साइन कन्वेंशन के एज इट इज दिस फॉर्म यू राइट दिस फॉर्मूला. बट ध्यान रखिए पहली सरफेस पर आप 1 से म्यू में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फॉर्मूला एज इट इज लग जाएगा. लेकिन दूसरी सरफेस पर आप म्यू से 1 में जाएंगे तो फॉर्मूले में साइन तो नहीं लगेगा, लेकिन म्यू विल चेंज. क्योंकि अब आप म्यू से 1 में जा रहे हैं तो म्यू की जगह आएगा 1 अपान म्यू, बिकॉज नाउ इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. जिसमें लाइट रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जिसमें से लाइट रे आ रही है. सो इट इज 1 बाई म्यू. सो फर्स्ट सरफेस पर लगाइए एट फर्स्ट सरफेस म्यू अपान वी, फर्स्ट सरफेस का वी है V1 माइनस 1 अपान यू इज म्यू माइनस 1 अपान R1. सेकेंड सरफेस के लिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें, लेकिन अब म्यू की जगह डालने वाले हैं आप 1 अपान म्यू. तो सेकेंड सरफेस पर एट सेकेंड सरफेस म्यू की जगह 1 अपान म्यू डालिए, 1 अपान म्यू अपान वी. सेकेंड सरफेस का वी है ये माइनस सेकेंड सरफेस का यू. सेकेंड सरफेस एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनाती है. सेकेंड सरफेस के लिए यहां लाइट रेज कन्वर्ज हो रही थी जिनको वो यहां कन्वर्ज करती है. तो सेकेंड सरफेस के लिए यू जो है वो एक्चुअली है V1. साइन डालना नहीं है, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस. अगेन म्यू की जगह 1 अपान म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई R2, सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ इस सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए. इसको अगर आप म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है म्यू अपान V1 माइनस 1 अपान यू इज म्यू माइनस 1 अपान R1, जबकि सेकेंड वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू से मल्टीप्लाई कर देने पर 1 अपान वी माइनस म्यू अपान V1 इज इक्वल टू म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस म्यू डिवाइड बाय R2. दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करेंगे म्यू अपान V1 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद
1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, ये कैंसिल हो गया टर्म, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। यहां से देखिए ऊपर है म्यू माइनस 1 और नीचे है 1 माइनस म्यू, इसको माइनस साइन बाहर निकाल करके म्यू माइनस 1 लिख सकते हैं। ऊपर से बचेगा 1 अपान R1 और नीचे से बचेगा माइनस साइन आपने बाहर निकाला हुआ था माइनस 1 अपान R2। Now we have already established that 1 upon Fs 1 upon V minus 1 upon U, length formula. So इस हिसाब से this will become 1 upon F and then we'll get the final result of it, and that is 1 upon Fs mu minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is called Lensmaker's formula. Actually जब आप किसी भी लेंस को बनाने के लिए ऑर्डर करते हैं अपने स्पेक्स के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो नॉर्मली लेंस मेकर्स को एक ग्लास शीट मिलती है जिसकी इनर और आउटर सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। सो दैट इज नॉट अ लेंस, बिकॉज अंदर और बाहर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है। सो दैट इज एक्चुअली अ कर्व्ड सरफेस ओनली, दैट हैज नो लेंस इफेक्ट। एंड देन by grinding convex surface they produce lens effect. So एक surface का radius of curvature उन्हें पहले से पता होता है, let's say R1। दूसरी surface का radius of curvature आपकी मर्जी के हिसाब से change करके they produce a particular focal length lens. So here the glass they are given, उसका mu fix रहता है, एक radius of curvature fix रहता है, दूसरे रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करके दे प्रोड्यूस अ लेंस एंड देन दैट लेंस इज यूज्ड इन योर स्पेक्स. सो दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला व्हिच हेल्प्स लेंस मेकर्स टू प्रोड्यूस अ लेंस ऑफ ए पर्टिकुलर फोकल लेंथ. इसमें एक चीज और है, एक बार जब आपका ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया तो अब आप जब इसे यूज करेंगे तो R1 R2 के प्रॉपर साइन डालेंगे और इस फॉर्मूले के हेल्प से आई कैन शो यू कि लेंस की दोनों साइड में फोकल लेंथ सेम रहती है अगर दोनों साइड में मीडियम सेम रहे. सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए. लेट अस सपोज टॉक अबाउट अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. In a plano convex lens, let's say this is plano convex lens. In a plano convex lens, अगर आप इधर से लाइट रे के इंसिडेंस की बात कर रहे हैं तो R1 is infinity and R2 is let's say minus R, because then its center of curvature will be somewhere here. So इसका F निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 upon F is mu minus 1 1 upon R1 that is infinity minus 1 upon R2 that is minus R. साइन समेत वैल्यू रखिए. 1 upon F is mu minus 1. Mu is always greater than 1. So this quantity is always positive. 1 upon infinity is 0. Minus minus plus. It will become R. This is a positive quantity. So F is R upon mu minus 1, which is certainly a positive value, that is convex lens of focal length. F is equal to R upon mu minus 1. अब आप इसी लेंस को पलट के रख लिए. Let's say like this. Now if the light rays are incident like this, this is what R इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर इधर आएगा तो R पॉजिटिव आएगा और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी. अब रखिए 1 अपॉन F is mu minus 1 1 upon R1 फर्स्ट वाली सरफेस का that is R minus 1 upon R2 that is infinity, चाहे प्लस हो या माइनस हो, this will become 0. So 1 upon F is simply mu minus 1 divided by R, and that means F is R upon mu minus 1. Same focal length
सेम पॉजिटिव फोकल लेंथ। सो लेंस को चाहे सीधा रखिए चाहे पलट के रखिए, इट गिव्स सेम फोकल लेंथ एंड अ कॉन्वेक्स लेंस। दैट मीन्स दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होने के बावजूद लेंस एक ही फोकल लेंथ के लेंस की तरह बिहेव करता है, चाहे आप ऐसे रखें या ऐसे रखें। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमारी ऐसी है। पहले केस में ये प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, दूसरे केस में ये कर्व सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। नाउ इन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट, we'll talk about a general case in which there are different media on both the side of the lens. We'll see what happens when both the side of the lens medium is different. So let us talk about that case.